Good morning, dear students. Today is our English period and we are going to start chapter number 7, a precious gift, यानी कि एक कीमती उपहार. Warm up. यहाँ देखिए, we get gifts on different occasions. What type of gifts do you usually get from your friends and relatives? What, according to you, is a precious gift? Have you ever thought what would be the precious gift for a blind person an eye so that he could also tell that the grass is green, a mango is yellow and an apple is red. हमें विभिन्न अवसरों पर उपहार मिलते हैं. आपको आमतौर पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किस प्रकार के उपहार मिलते हैं? आपके अनुसार एक अनमोल तोहफा क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधे व्यक्ति के लिए सबसे कीमती तोहफा क्या होता है? क्योंकि आँखें ताकि क्या होता है उनकी आँखें, ताकि वे भी बता सके कि घास हरी है, आम पीला है और सेब लाल है. यहाँ देखिए, read this story about Mr. Das and what precious gift he got on his birthday. इस स्टोरी में हम मिस्टर दास के बारे में पढ़ेंगे कि उनके लिए सबसे कीमती तोहफा क्या है. Mr. Das was a merchant. He had a big family and lot of friends every year on his birthday, the 9th of February. They all came to his house with flowers and gifts. They had dinner with him and enjoyed themselves. मिस्टर दास एक व्यापारी थे. उनका एक बड़ा परिवार और बहुत सारे दोस्त थे. हर साल 9 फरवरी को उनके जन्मदिन पर सभी फूल और उपहार लेकर उनके घर आते हैं. वो उनके साथ डिनर करते थे और आनंद लेते थे. It was after midnight and Mr. Das' birthday party was just over. He was alone in his living room. He picked up the bucket of bouquet of roses as he was smiling the flowers. He saw the shadow. Page turn करो. Of a hat on the table. He knew there was a thief in the room. He knew that a thief was hiding in the ceiling. He called out to his cook, "Bring back all the dishes. One of my guests has not had his dinner." यहाँ अभी आधी रात के बाद का समय था और मिस्टर दास के जन्मदिन की पार्टी अभी ख़त्म ही हुई थी. वह अपने लिविंग रूम में अकेले थे. उन्होंने रोज़ का गुलदस्ता उठाया. जैसे ही वह फूलों को सूंघ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मेज पर एक परछाई थी, मतलब कि शैडो थी, छाया. वह जानते थे कि कमरे में एक चोर था. उसे पता था कि चोर छत पर है. वह अपने कुक को बुलाते हैं और कहते हैं, "सारे व्यंजन वापस लाओ. मेरे मेहमानों में से एक ने अपना डिनर नहीं किया है." The cook obeyed his master. He put several tasty dishes on the table and left the room. Mr. Das then looked up at the man in the ceiling and said, "Thank you for coming to my house on my birthday. Please come down and have something to eat." कुक ने अपने मास्टर की बात मानी. उन्होंने कई स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर रखे और बाहर निकल गया. मिस्टर दास ने उस चोर को देखा जो छत पर था और उससे कहा, "मेरे बर्थडे पर आने के लिए आपका शुक्रिया. कृपया नीचे आइए और कुछ खा लीजिए." The thief was starving. He looked at the mouth-watering dishes and came down. He sat at the table and had a big meal. Mr. Das was an excellent host and talked to him politely. Before the stranger left, Mr. Das gave him a bag of silver coins and said, "Accept this small gift from me." चोर भूख से मर रहा था. उसने स्वादिष्ट खाने
खाना देखा और वह नीचे आ गया। वो टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। तभी मिस्टर दास एक उत्कृष्ट मेजबान थे। मिस्टर दास ने उससे आदरपूर्वक बात करी। इससे पहले कि वो अजनबी उनके घर से जाए, मिस्टर दास ने चांदी के सिक्के का एक बैग अजनबी को दिया। Several years went by. It was 9th of February. There was a big party at Mr. Das' house. By 12 o'clock, his guest had left at 12:30. The bell rang and a stranger came in. He was carrying a lovely bouquet of white roses and a gift. He went up to Mr. Das and gave him the flowers and the gift. Mr. Das unwrapped the gift and found a velvet bag. Inside the bag, there was a gold coin. After thanking and stranger, Mr. Das asked him, "Why have you given me this expensive gift?" बहुत साल बीत गए। 9 फरवरी के दिन बहुत बड़ी पार्टी थी। मिस्टर दास के घर 12 बजे तक सारे गेस्ट पार्टी अटेंड करके जा चुके थे। 12:30 पे मिस्टर दास के घर की डोरबेल बजी और एक अजनबी आदमी उनके घर आया। उसके पास वाइट रोज़ का बुके था और एक गिफ्ट था। मिस्टर दास ने गिफ्ट को खोला। उसमें एक मखमल का बैग मिला। बैग के अंदर एक गोल्ड कॉइन था। अजनबी का शुक्रिया करने के बाद मिस्टर दास ने उससे पूछा, "आपने मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया?" पेज टर्न करो। Many years ago, the stranger said, "On your birthday, you looked after me, gave me a bag of silver coins, and treated me like an honored guest." Mr. Das remembered the man in the ceiling. He said, "Let us have dinner together again. By what name should I call you?" अजनबी बोलता है, "बहुत साल पहले आपके जन्मदिन पर आपने मेरी मदद की थी। आपने मुझे चांदी के सिक्के दिए थे और एक आदरणीय मेहमान की तरह मेरा स्वागत किया था।" मिस्टर दास को वह आदमी जो छत पर था वह याद आ जाता है। उन्होंने बोला, "चलो एक बार फिर से डिनर करते हैं। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं?" "Why should you know my name, sir?" asked the stranger. "Years ago you invited me to have dinner with you. I was a thief then. Now I am an honest man. I work hard and earn my livelihood. Your goodness and your kindness changed my life." "सर, आपको मेरा नाम क्यों पता करना है?" चोर ने पूछा। "सालों पहले आपने मुझे डिनर पर बुलाया था। तब मैं चोर था। अब मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैंने बहुत मेहनत की और अपना घर चलाने लगा। आपकी अच्छाई और दया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी." यहाँ देखिए, मिस्टर दास वॉज डीपली मूव्ड. "आई एम प्राउड ऑफ यू," he said. "One little act of kindness has multiplied several times." After some time he said, "You have given me the most precious birthday gift I have ever received." मिस्टर दास ने बोला, "मुझे तुम पे गर्व है। एक छोटी सी दया बहुत बड़ी बन गई।" कुछ देर बाद मिस्टर दास बोले, "तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती उपहार दिया है।" बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज में कंप्लीट करके आपको उसकी पिक खींचकर ग्रुप में सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।